Hello everyone. Welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. And today we are going to start the second chapter of our book, and the name of the chapter is Plant and Animal Cell. So students, as you know that the cell is the basic structural and functional unit of our life. That means this cell which is present in our body is the structural, that means it provides the structure. Along with that, it is the functional unit of our body. Functional, that means it performs the several functions which occurs in our body. So let's have the content reading and the explanation. So here is your chapter, plant cell and animal cell. So as you know that the cell which are present in the plants are called as plant cell, and those cells which are present in the animals are called animal cell. So in this chapter, basically the theme of the chapter is cell. We will discuss about the cell, either it is from plants or it is from the animals. Along with that, we will learn about the cell, the plant and animal cell. In this chapter, we will go through the cell, which is the basic unit of life, and the second thing which we will study is the plant and the animal cell. Let us begin with this picture given. So you can see that the first picture is several leaves which are present. Basically you can see that it is a plant which is growing. Second picture is a dog, and the third one is a child. So after that, it is asking several questions based on this picture. Are they living or non-living? It is asking that if all these pictures which are present, if they are living or non-living. So yes, they are living, because the plant, which is also living being, living thing, it means it can synthesize its own food and has the process of transpiration and other things. It has growth. All other processes are present, so that is the living. Along with that, here is a picture of a dog. It is also a living organism, whereas the third picture is a child like us. So we are also living thing. So the answer will be yes, all these three pictures are living organisms. How do these organisms grow? How do these organisms grow? Because the number of cell divide and form new cell. Due to that, the number of cell increases in the body, and hence it results in the growth of the body. The third question is, what do you think they are made up of? ये किस चीज के बने हुए हैं? So all these three things are made up of cell. Whereas the first picture you can see is a plant, that means the cells present in this organism is plant cell, whereas dog is an animal, and us, like we are also animal. Human is also a type of animal. So here is a child and here is a dog. These two are also animal, and their body is made up of animal cell. So let us begin with the first topic of the chapter, the cell. All living organisms that we see around us are made of small units called cell. The living beings which are present around us, they all are made up of a small unit called cell. So cell is a small unit present in our body. A cell is a structural and functional unit of our life. The cell, I have already told you that this cell is the structural, that means number of cells aggregate and form a definite shape, and that shape is providing the structure to any of the being. Okay. Whereas this cell is also the functional unit of life. Function, that means it performs several functions. Individual cell perform its own breathing, its own excretion and its own metabolic activities. So that's why we can say that the cell perform its own function. Along with that, when several cells aggregate, they perform several functions. So that's why it is also called the functional unit of life.
Each cell in living organism perform a specific function. In living organism, each cell in living organism perform a specific function. Yes, you can see that the liver is present, heart is present, whereas you have the digestive system. So all these are made up of cell. The liver is also made up of cell, heart is also made up of cell, eyes are also made up of cell, whereas the digestive system is also made up of cell. But according to their function, you can see that the function of all the cells are different. Like liver, it secretes digestive juices, it secretes several enzymes. So what is its function? Their cell is responsible for the secretion, whereas the eye, it used to see, it used to sense what is present. So its function is different, whereas the digestive system is different and the function of brain is also different. So each cell on its position and its function, they perform the different types of functions. Based on their specific function, similar cells combine to form tissue. पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है किसी भी सेल का, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का यही फंक्शन है कि वो खाने को वो पचाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा और जो यूजफुल प्रोडक्ट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इस फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल प्रेजेंट है उनका काम सिर्फ क्या है, डाइजेशन करना, एंजाइम्स को सिक्रेट करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, उन सेल्स का ये काम है. तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट हैं उनका काम है डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का. तो स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक सेल जब करती हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल उस कंडीशन में प्रेजेंट होती है. जैसे कि अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कमांड करता है, कंट्रोल करता है. यानी ब्रेन के जितनी भी सेल्स होंगी वो एक टाइप की होंगी, तभी तो मिलके सारी सेल्स एक किसी फंक्शन को कर रही हैं. तो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ही करती है. मतलब एक जैसा फंक्शन एक जैसे शेप साइज कंडीशन की सेल करती हैं. तो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल जिनका सेम फंक्शन होता है वो एक साथ आकर के टिश्यू बनाती हैं. मतलब एक तरह की सेल्स जिनका एक ही काम होता है उनको कहा जाता है टिश्यू. मतलब मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि सपोज ये एक सेल है, ये है सेल डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसका भी काम डाइजेशन का था, दूसरी सेल थी उसका भी काम डाइजेशन का था और तीसरी सेल है इसका भी काम डाइजेशन का है. तो पूरा अगर डाइजेशन करना है तो ये तीनों सेल क्या की, एक साथ आ गई और अपना काम कर रही हैं. तो जब एक एक अकेली सेल थी तो उसको हमने बोला कि दे आर सेल. लेकिन जब वो एक साथ आकर के किसी डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म कर रही थी तो वो एक साथ आ गई, ग्रुप में हो गई, तो उसको हम बोले टिश्यू. मतलब जब ढेर सारी सेल्स एक साथ मिल करके किसी भी काम को करती हैं तो उसको टिश्यू कहा जाता है, और जब अकेले वो होती हैं तो उनको सेल कहा जाता है. ओके, सो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. Now, based on their specific function, similar cells combine to form tissue. अपने फंक्शन के बेसिस पर जो एक तरह की सेल्स होती हैं वो कंबाइन करके टिश्यू को फॉर्म करती हैं. टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, और जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, एक जैसे टिश्यू एक साथ आकर के ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं. वहीं पर ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये सारे सिस्टम ऑर्गन से बने हुए हैं और नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. मतलब जैसे आपके बॉडी में एक सेल था, सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिल करके एक ऑर्गन बनाई, सपोज ईसोफेगस बनाए, स्टमक बनाई, इंटेस्टाइन बनाई, सिमिलर टाइप ऑफ सेल. तो फिर जो इंटेस्टाइन था ये क्या बना, इसके टिश्यूज बने. मतलब इंटेस्टाइन के अंदर टिश्यू है, पे आपके जो स्टमक है उसके अंदर टिश्यू है, फिर वो टिश्यू एक साथ हो करके ऑर्गन बनाए, लाइक लिवर बनाए, हार्ट बनाए,
ब्लड बनाए, इंटेस्टाइन बनाए, स्टमक बनाए, और ये ऑर्गन्स हैं। और ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ, ये सब मिला करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, तो उसको कहा गया ऑर्गन सिस्टम। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं, उसका एग्रीगेशन हमारी बॉडी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। Therefore, cell are also called the building block of life. Yes, cell is also called the building block of life. जैसे कि ईंट को, एक एक ईंट को रख करके एक घर बनता है। जब कभी भी आप घर बनता हुआ देखें तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा ईंट होता है और उस ईंट को रखते 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 बनाई जाती है पूरी बिल्डिंग। और एक बिल्डिंग में कितने सारे ईंटें होते हैं आप गिन नहीं सकते हो। तो वही कंडीशन हमारे बॉडी का होता है। हमारी बॉडी में जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते हो, वो एक साथ अरेंज हो करके बॉडी को बनाती हैं। जिस तरह ईंट से घर बनता है उसी तरह सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। ओके। सेल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती हैं उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। Okay, for example, cell in plant and animal are different in shape, size, structure and function. इसका एग्जाम्पल ये है कि जो प्लांट में होता है, प्लांट में आपको पता है ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग करते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स की कंडीशन में डिफरेंट है। प्लांट की कंडीशन में उनको अपने खाना बनाने के लिए, फूड की सिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वहीं पर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो हमारे जस्ट अपोजिट हुए, आप खाना प्लांट का ले करके पका लेते हैं, चावल, आटा, गेहूँ सब पका लेते हैं और हम उसको खाते हैं। वहीं पे प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन वाटर, मिनरल्स, इन सबको यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सेल्स में और एनिमल्स के सेल्स में बहुत सारी डिफरेंसेस होंगे। ओके। तो प्लांट और एनिमल जो हैं इनमें डिफरेंट शेप होता है, इनमें इनकी साइजेस भी डिफरेंट होती हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और फंक्शन भी डिफरेंट होता है प्लांट के और एनिमल के सेल्स के बीच में। ओके। नाउ द डिस्कवरी ऑफ द सेल। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल जो है सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा बनाया गया था, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और ये जब डिस्कवर किए थे सेल की, जब इन्होंने खोज की थी, तो उस टाइम 1665 का टाइम चल रहा था, 1665 का। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन अ बुक कॉल्ड माइक्रोफेजिया। इन्होंने क्या किया कि अपना जो भी इन्होंने खोज किया, उन्होंने अपनी बुक माइक्रोफेजिया में सारी चीज़ें लिख दी। ओके। While observing cork under his microscope, आप देख रहे हैं ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये माइक्रोस्कोप है, इसमें लिखा हुआ है हुक्स माइक्रोस्कोप, मतलब ये माइक्रोस्कोप उनका था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया, उसके नीचे जो कॉर्क रखा हुआ था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि उसके ऊपर जो उनका माइक्रोस्कोप था, उसका जो कॉर्क था, उसके ऊपर, कॉर्क मीन्स होता है जैसे वाइन वगैरह की जो बॉटल होती है उसका ऊपर जो ढक्कन होता है ना, उसको कॉर्क कहते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि उस कॉर्क के ऊपर हनी कॉम्ब, मतलब ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ऐसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा स्ट्रक्चर उनको कुछ छोटा छोटा उसमें दिखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि ये है क्या। तब उनको ऐसा फील हुआ कि ये तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी रिसेंटली ग्रो किए हैं और ये हनी कॉम्ब के जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको फिर अपने माइक्रोस्कोप में चेकआउट किया और फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो है ये कुछ फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम सेल कह सकते हैं, और उनका जो माइक्रोस्कोप था उसको बोला गया हुक्स माइक्रोस्कोप। ओके। अबाउट 150 ईयर्स लेटर, जब उन्होंने 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी, उन्होंने अपनी बुक माइक्रोफेजिया में ये सारी चीज़ें लिख दी,
लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ। 150 सालों बाद एक आए साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटन वॉन लीवनहॉक। इन्होंने क्या किया, जो हमारे रॉबर्ट हुक सर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉर्क पे ये चीज़ें देखी तो, सेल को देखा तो, लेकिन वो डेड सेल्स थे, मतलब वो सेल मर चुके थे। तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कि इन्होंने सेल की डिस्कवरी तो की, लेकिन वो डेड सेल थे। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले खोज की, लेकिन वो जो सेल थे वो डेड सेल थे। लेकिन जो हमारे एंटन वॉन लीवनहॉक थे, इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया फॉर द फर्स्ट टाइम। यू कैन सी हियर, एंटन वॉन लीवनहॉक ने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम। लेटर इन 1838, फिर क्या हुआ, 1838 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर श्वान एंड मैथियस सेचिलिडेन। दो आदमी थे 1838 में, थियोडर श्वान और मैथियस सेचिलिडेन और रुडोल्फ वर्चाओ। इन तीनों ने मिल करके सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी मतलब जैसे पहले सेल के बारे में सिर्फ बेसिक चीज़ें पता थी। इन्होंने क्या किया, एंटन वॉन लीवनहॉक की स्टडी की, रॉबर्ट हुक के जो बुक थी उनकी स्टडी की, और उसके बेसिस पे इन्होंने सेल थ्योरी दी, एक थ्योरी दी जिसमें सेल के बारे में चीज़ें लिखी हुई थी। और जो थ्योरी है वो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, इन सभी चीज़ को वो बताता है। ये काम कब हुआ था, 1838 में। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर श्वान, मैथियस सेचिलिडेन एंड रुडोल्फ वर्चाओ। इन्होंने सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी में ऑब्वियस सी बात है, थ्योरी, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी जो कि इन्होंने प्रीवियस स्टडीज़ के बेसिस पे ऑब्जर्व किया कि सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, और उसको उन्होंने लिखा, जिसको कहा गया सेल थ्योरी। उनकी थ्योरी में था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। सेकेंड वॉज द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दो कंडीशन। तीसरी उन्होंने लिखी सेल थियरी में, द न्यू सेल डेवलप फ्रॉम द ओल्ड सेल, जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से डेवलप होते हैं, मतलब जो पुराना सेल होता है वो टूट करके दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बने होते हैं, कहीं दूर से नहीं आते हैं। फिर चौथी कंडीशन उन्होंने लिखी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया में प्रेजेंट हैं, हर किसी की लाइफ जो है सिंगल सेल से शुरू होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं अभी बताना चाहूँगी, जैसे कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जब वो पैदा होता है तो आप देखते हैं उसकी साइज़ छोटी होती है, मतलब हम आप तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ही छोटा होता है। उसके पहले वो अपनी मदर के पेट में होता है, उनके यूट्रस में होता है। उस कंडीशन में आपको पता है, कहते हैं कि जो विमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 मंथ्स का होता है। तो 1 से लेकर के 9 मंथ के बीच में वो जो छोटा सा बेबी जो बाहर आता है उसका पूरा डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलपमेंट फर्स्ट मंथ से वो एक सिंगल सेल होता है, और वो डिवाइड होते 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 न्यूमरस सेल्स, फिर उसकी टिश्यूज़ बनती हैं, फिर उसका ऑर्गन्स बनते हैं, फिर उसकी बॉडी बनती है, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी जब बन जाती है तो फिर वो बड़ा, थोड़ा सा उसकी साइज़ बड़ी होती है, और फिर वो उस बॉडी के बाहर आता है। तो इस तरह से जो एक छोटा बेबी है वो भी एक सेल से बना हुआ है, मतलब इवन हम आप जो हैं, हम आप भी एक सेल से ही शुरू हुए हैं, एक सेल से ही हमारे आपकी बनने की प्रोसेस शुरू हुई है। द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज, जो लार्जेस्ट सेल है दुनिया में वो अभी भी, मतलब ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। Now the topic is the plant and animal cell. So this we will discuss in tomorrow's lecture. That's all for today. Your assignment work is
write a short note on cell theory. First thing is that, and the second question for you, write down the discovery of cell. So that's all for today guys. Thank you everyone.